Good morning students, class 12th mathematics, chapter 13 probability. Today we start Bayes theorem, exercise 13.3. Bayes theorem related to exercise 13.3, that is law of total probability and Bayes theorem. आज हम Bayes theorem को ही कंटिन्यू कर रहे हैं. पिछले वीडियो में भी Bayes theorem हमने डिस्कस की थी, उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं. Question number 8. A factory has two machines A and B. Past records show that machine A produce 60% of the output and machine B produce 40% of the items. Further, 2% of the items produced by machine A and 1% produced by machine B were defective. All the items are put into one stockpile and one item is drawn at random from this and is found to be defective. What is the probability that it was produced by machine B? But there are two machines, machine A and B. Past records show that machine A produces 60% of the item of the output, machine B produces 40% of the items. E1 is the machine A is selected, E2 is the machine B is selected. Machine A 60% आइटम बनाती है, machine B 40% बनाती है. तो probability of E1 क्या आ गया 60/100, probability of E2 क्या आ गया 40/100. 2% of the item produced by machine A and 1% produced by machine B were defective. ठीक है, all the items are put into one stockpile and then one item is drawn at random from this and is found to be defective. वगैरह कि टोटल आइटम्स को एक हमने इकट्ठे एक स्टॉक में रख दिया और उसमें से एक आइटम बाहर निकाल लिया एंड आइटम इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव. ए इज द इवेंट, आइटम चूजन इज डिफेक्टिव. What is the probability that it was produced by machine B? Item produced by machine B. Machine B means E2. Item produced by machine B. What is the probability that item produced by machine B and it is defective? Machine B means E2. Given A मुझे find out करना है. Probability of E2 given A find out करना है मुझे. E2 given A क्या होता है? बाय Bayes थ्योरम से इसकी वैल्यू क्या है बेटे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A गिवन E2 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A गिवन E2. ठीक है बेटा, अब मुझे इन चारों की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, उसको ध्यान से सीखें. सबसे पहले बेटे मशीन A 60% आइटम बनाती है, मशीन B 40%. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आ गया 60/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा 40/100. A is the event, item chosen is defective. मुझे अब A given E1 और A given E2 निकालना है. A given E1 का मतलब A का मतलब क्या? Item is defective and is produced by machine A and item is defective and is produced by machine A. A given E2 का मतलब item is defective and is produced by machine B. ठीक है, उन्होंने कहा 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव. डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी जब वो मशीन ए प्रोड्यूस करती है वो 2% है 2/100. डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी जब वो मशीन बी प्रोड्यूस करती है दैट इज इक्वल टू 1% 1/100. ये पी ऑफ E1, पी ऑफ E2, पी ऑफ ए गिवन E1, पी ऑफ ए गिवन E2, इन चारों वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. पी ऑफ E1 ए गिवन E1, पी ऑफ E1 ए गिवन E1 प्लस पी ऑफ E2 इंटू ए गिवन E2. वैल्यूज पुट करी बेटे 40 इंटू 140 डिवाइड बाई 10,000. ये आ गया 120/10,000, 40/10,000, 40/10,000. ये ऐड होके क्या आ गया 160/10,000, 40/160, 1/4 आपका क्या आ गया आंसर. क्लियर है बेटे. क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई. बेटे एक्सपेरिमेंट क्या किया? डाई फेंकनी है. इफ शी गेट 5 or 6, she tosses a coin 3 times. She tosses a coin 3 times and notes the number of head. If she gets 1, 2, 3, 4 with the die, she tosses coin once and notes whether a head or a tail is obtained. If she obtained exactly one head, then what is the probability that she threw 1, 2, 3, 4 with the die? बेटे सबसे पहले सैम्पल स्पेस क्या है हमारे पास? डाई को फेंकना है. डाइस में 1, 2, 3, 4, 5, 6. उसने सैम्पल स्पेस की पार्टीशनिंग कर दी. इफ़ शी गेट 5 or 6 और इफ़ शी गेट 1, 2, 3, 4. तो मैंने कहा E1 इज़ द इवेंट इफ़ शी गेट 1, 2, 3, 4 विद द डाई एंड E2 इज़ द इवेंट इफ़ शी गेट 5 or 6 विद द डाई. तो P ऑफ E1 क्या हो गया 1, 2, 3, 4 विद द डाई कितना आ गया 4 डिवाइड बाई 6 2/3 आ गया. P ऑफ E2 क्या आ गया? शी गेट 5 or 6 विद द डाई, वो कितना आ गया 2/6. कितना आ गया 1/3 आ गया. इफ़ शी गेट 5 or 6, शी टॉसेस ए कॉइन 3 times. अगर 5 और 6 आता है
अगर 5 और 6 आता है, शी टॉसेस कॉइन 3 टाइम्स, तो बेटा उसने कॉइन को 3 बार टॉस करना है। 3 बार टॉस करते हैं तो 2⁻³ मीन्स 8 आउटकम्स बनते हैं। कौन से? 3H, HST, HTH, THH, TTH, HTT, TST एंड TTT। दोबारा से देखो, उसने कहा इफ शी गेट 5 और 6 शी टॉसेस कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट द नंबर ऑफ हेड्स। उसने अगर 5 और 6 आता है तो उस केस में कॉइन को 3 बार टॉस करना है। 3 बार टॉस करना मीन्स 2⁻³ मीन्स 8 आउटकम्स आएंगे। तीनों हेड, तीनों टेल, 2 हेड 1 टेल, इस तरह से टोटल 8 आउटकम्स आ गए। इफ शी गेट 1 2 3 4 शी टॉस ए कॉइन वंस। अगर 1 2 3 4 आता है तो उसने कॉइन को एक बार ही टॉस करना है, और कॉइन एक बार टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो क्या आएगा हमारे पास? HOT। If she obtain exactly one head, A is the event, she obtain exactly one head, then what is the probability that she threw 1 2 3 4? उसने कहा what is the probability that she threw 1 2 3 4 and obtain exactly one head? तो मुझे क्या निकालना है? she threw 1 2 3 4 with the die का मतलब मुझे क्या निकालना है? even given A मुझे फाइंड आउट करना है। even given A means P of E1 into A given E1 divided by probability of E1, A given E1 plus probability of E2 into A given E2, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए बेटा, मुझे क्या निकालना है? A गिवन E1 निकालना है, A गिवन E1 निकालना है एंड A गिवन E2 निकालना है। A गिवन E1, ये देखो बेटे, A गिवन E1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन हेड व्हेन शी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई। A गिवन E2 का मतलब है एग्जैक्टली वन हेड की प्रोबेबिलिटी जब शी थ्रू 5 और 6 विद द डाइस। एक हेड जब 1 2 3 4 आता है, दोनों केसेस में निकालना सिंगल हेड की प्रोबेबिलिटी है। जब 1 2 3 4 आया, 1 2 3 4 आया, 1 2 3 4 आया तो हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हेड कितने हैं? 1, टोटल कितने हैं? 2, कितना आ गया? 1/2। ये कितना आ गया हमारे पास? ये कितना आ गया हमारे पास? 1/2। और A गिवन E2 मींस एग्जैक्टली वन हेड व्हेन शी थ्रू 5 और 6 विद द डाइस। एग्जैक्टली वन हेड की प्रोबेबिलिटी जब 5 और 6 आता है डाई में, जब डाई में 5 और 6 आता है, इधर देखिए डाई में 5 और 6 आता है तो एक हेड निकालने वाले काउंट कर लो इसमें 1 2 3 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, कितना है? 3 डिवाइड बाय 8। यहाँ हमने पुट कर दिया 3 डिवाइड बाय 8। तो इसमें फॉर्मूला E1 गिवन है क्या है? E1 इंटू A गिवन E1 डिवाइड बाई E1, A गिवन E1 प्लस E2 इंटू A गिवन E2। इन वैल्यूज़ को मैंने पुट किया। E1 2/3, ये 1/2, 2/3, 1/2 प्लस 1/3 इंटू 3/8 कैंसिल किया। 2/6 प्लस 1/8 एलसीएम लेके 24, क्या आ गया? 6 4 दा 4 2 दा 8, 8 3 दा 3, क्या आ गया? 2/8, 11/24 रेसिप्रोकल सोल्व करके 8/11 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर है बेटे? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये था। इस चीज़ को दोबारा देखें। अगर 1 2 3 4 आता है तो कॉइन को आपने सिंगल टाइम टॉस करना है HT। जब 5 और 6 आता है कॉइन को 3 टाइम टॉस करना है, 8 आउटकम्स। एक है एग्जैक्टली वन हेड, तो A गिवन E1 का मतलब क्या है हमारे पास? A गिवन E1 और A गिवन E2 का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली एक हेड आए जब 1 2 3 4 आया। 1 2 3 4 का मतलब एक हेड में 1 डिवाइडेड बाय 2। अब एग्जैक्टली वन हेड की प्रोबेबिलिटी जब 5 और 6 आता है, वन हेड वाले कितने हैं? 3 डिवाइड बाय 8। इसको इसमें पुट कर देंगे, यू विल फाइंड द आंसर। ये पुट किया हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे और आंसर आ गया। A card from a pack of 52 card, question number 12 is very very important. A card from a pack of 52 card is lost from the remaining card of the pack. 2 cards are drawn and are found to be both diamond. Find the probability that lost card being a diamond. सबसे पहले तो मैं सिंपल बात करूंगा कि हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स 52 हैं हमारे पास। 52 में डायमंड की बात करेंगे, डायमंड 13, नॉन डायमंड कितने होंगे? 52 माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 39। नॉन डायमंड हमारे पास कितने आ गए? 39। बेटे फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज लॉस्ट, वन कार्ड लॉस्ट हो गया है एंड रिमेनिंग कितने बचे? 51 कार्ड्स। रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास? 51 कार्ड्स। उसमें से 2 कार्ड हमने बाहर निकालने हैं एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। ये दोनों के दोनों क्या है? डायमंड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। बेटे लास्ट लाइन से सब कुछ क्लियर होता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। प्रोबेबिलिटी निकालनी है लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट, क्या गिवन है? 2 डायमंड कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग 51 कार्ड्स। रिमेनिंग 51 कार्ड्स, 2 डायमंड कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग 51 कार्ड्स। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसको मैंने E1 मान लिया।
तो E1 क्या है, लोएस्ट कार्ड इज ए डायमंड, तो E2 क्या हो गया, लोएस्ट कार्ड इज नॉट ए डायमंड, नॉन डायमंड, बट ए लोएस्ट कार्ड इज ए डायमंड। डायमंड होते हैं 13, तो डायमंड लोएस्ट हुआ तो फेवरेबल हो गया 13, टोटल 52, 13/52 आंसर आ गया। उन्होंने कहा लोएस्ट कार्ड इज नॉट ए डायमंड, डायमंड ना हो तो दैट इज नॉन डायमंड, और नॉन डायमंड कितने हैं हमारे पास 39, नॉन डायमंड कितने हैं 39 डिवाइडेड बाय 52, कितना आ गया 3/4, कैंसिल हो गया। ए इज द इवेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 51 कार्ड्स 2 डायमंड कार्ड्स आर ड्रॉन। ठीक है, अब ए गिवन E1 और ए गिवन E2 का मीनिंग पता चल जाए तो आपका तो सारा आंसर ही आ गया। ए गिवन E1 और ए गिवन E2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ए गिवन E1 का मतलब है कि फ्रॉम रिमेनिंग 51 कार्ड्स 2 डायमंड कार्ड्स आर ड्रॉन, देखा है ना, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विच आर फाउंड टू बी डायमंड्स, फ्रॉम द रिमेनिंग 51 कार्ड्स 2 डायमंड कार्ड्स आर ड्रॉन गिवन दैट लोएस्ट कार्ड इज ए डायमंड। लोएस्ट कार्ड क्या हो चुका है ऑलरेडी, डायमंड एक लोस्ट कार्ड हो चुका है। अब टोटल हमारे पास 51 कार्ड्स हैं, उसमें से 2 कार्ड निकालने हैं, तो एक से ज़्यादा अगर कार्ड निकालने हैं तो हमें कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है, तो डिवाइड में टोटल आउटकम्स कितने होंगे 51 में से 2, 51C2। ठीक है, लोस्ट कार्ड इज ए डायमंड, लोस्ट कार्ड डायमंड है, टोटल डायमंड 13 होते हैं, अगर एक लोस्ट हो गया तो डायमंड कितने बचे 12, तो 12C2 डिवाइड में 51C2। ठीक है, और ए गिवन E2 का मतलब क्या है, फ्रॉम द रिमेनिंग 51 कार्ड्स 2 डायमंड कार्ड्स आर ड्रॉन गिवन दैट क्या लोस्ट कार्ड इज नॉट ए डायमंड, डायमंड लॉस्ट नहीं हुआ है, डायमंड लॉस नहीं हुआ तो डायमंड तो 13 के 13 है, तो 13 तो फिर 13 में से 13C2 डिवाइड बाय 51C2। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इस चीज़ को दोबारा से समझो, इधर से दोबारा से देखिए। मैंने कहा ए गिवन का मतलब है, ए का मतलब है 2 डायमंड्स कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग 51 कार्ड्स, तो नीचे तो क्या आएगा टोटल आउटकम 51 में से 2 51C2 गिवन दैट लोस्ट कार्ड इज ए डायमंड। वैसे डायमंड हमारे पास 13 होते हैं, जब एक लोस्ट हो गया तो हमारे पास डायमंड कितने बच गए 12, तो 12 में से 2 12C2। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए कैसे कॉम्बिनेशन एनसीआर कैसे सोल्व करते हैं, नीचे 2 है, 2 × 1 2 बारी कम कर दो, 12 को ब्रेक किया 12 × 11 होल डिवाइड में 51C2 में नीचे वाले को 1 तक ले आओ, 2 × 1 ऊपर वाले को भी 2 टाइम्स कम कर दो, 51 × 50 ये कैंसिल, 12 × 11 बाय 51 × 50। अब ए गिवन E2 का मतलब क्या है, 2 डायमंड कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग 51 कार्ड्स गिवन दैट लोस्ट कार्ड इज नॉट ए डायमंड। नीचे क्या आएगा हमारे पास 51C2, क्योंकि रिमेनिंग 51 में से 2 निकालने हैं 51C2, जब लोस्ट कार्ड हमारा डायमंड नहीं हुआ है, लोस्ट कार्ड हमारा डायमंड नहीं हुआ है, इसका मतलब डायमंड तो 13 के 13 पड़े हुए हैं, लोस्ट कार्ड कोई और कार्ड है, डायमंड नहीं है, तो डायमंड तो 13 के 13 पड़े हुए हैं, तो 13C2 सिंप्लीफाई करो, क्या आ गया हमारे पास, इधर 2 × 1 13 × 12 2 बारी कम किया, इसको भी 2 × 1 51 × 50 ये आ गया 13 × 12 बाय 51 × 50। इस फॉर्मूले में पुट कर दो, इवन गिवन ए वाले फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे इन चारों की, और यूल फाइंड द आंसर। ओके बेटा, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे फ़ोन करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ओके बेटा।